Hello students, today we will discuss about electric potential due to electric dipole. As we have already discussed about intensity of electric field due to electric dipole in various conditions. So in the case of electric potential due to electric dipole, two cases are more important. First one is that electric potential due to electric dipole on the axis of dipole, and second one is equatorial line, on equatorial line. Okay, so today we will discuss the first case of electric potential due to electric dipole, that is electric potential due to electric dipole, electric potential due to electric dipole at a point on the axis of dipole, and the axis of dipole, at a point on the axis of dipole. Okay, it is the first case. Student, today we will discuss electric potential due to electric dipole on the axis of dipole, that is electric potential due to electric dipole at a point on the axis of dipole. It is today's topic. So first of all we consider an electric. Let us consider an electric dipole AB formed by charges minus q and plus q, which are separated by small distance 2L, and this system is placed in air or vacuum. Student, we have considered, first of all, let us consider that an electric dipole AB formed by minus q and plus q charges, which are separated by small distance 2L apart, and their midpoint is O. Then this will be L and this will be also L. Now consider there is a point on the axis of dipole. Let us consider there is a point P. There is a point P on the axis of dipole at a distance small r from the midpoint O of the dipole. From the midpoint O of the dipole at a distance small, there is another point P at which we have to find the intensity of electric field. Okay, total distance from O and P, the distance between O and P is smaller. So, and this, if we reduce this distance will be equal to R minus L, and this distance from point A and from point A to point P, the distance will be R plus L. This is the distance. Okay, so student, now we have considered this diagram. Now we know that the electric potential due to a point charge at a point is equal, V is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R. It is the electric potential due to a point charge at a point. किसी भी point charge से स्मॉल r डिस्टेंस पे अगर कोई पॉइंट है, इस चार्ज के कारण इस पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है वो ये होती है ना. तो इस क्या होगा, इन दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल देयर आर टू चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू. सो ड्यू टू दिस लेट कंसिडर कर लिया जाए, लेट V1 and V2 be the electric potential
ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P due to charges plus Q and minus Q of the dipole, then क्या हो जाएगा स्टूडेंट? देन V1 एंड V2 के वैल्यू हम फाइंड आउट करना है ना। देखिए क्या क्या किया गया है। सबसे पहले हमने कंसीडर किया है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल AB जो प्लस Q और माइनस Q चार्जों से मिलके बना है। इसका मिड पॉइंट O है। इसका डाइपोल का टोटल लेंथ 2L है। मिड पॉइंट O होने की वजह से ये लेंथ L और ये भी लेंथ L हो जाएगा। इसके मिड पॉइंट O से स्मॉल r डिस्टेंस पे इसके एक्सिस पे एक पॉइंट P है एट विच वी हैव टू फाइंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद देखिए पॉइंट B से पॉइंट P का डिस्टेंस r माइनस L है और पॉइंट A से पॉइंट P का जो डिस्टेंस होगा वो r प्लस L हो जाएगा। अब प्लस Q चार्ज के कारण अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट P पर V1 कंसीडर किया जाए और माइनस Q चार्ज के कारण V2 कंसीडर किया जाए तो अगर इस फार्मूले को देखा जाए तो इसके अकॉर्डिंग V1 की वैल्यू क्या होगी? देखिए डिस्टेंस यहाँ पे r माइनस L है, तो यहाँ पे V1 का वैल्यू निकालेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r माइनस L। पॉजिटिव चार्ज के कारण तो पॉजिटिव वैल्यू होगा। अब निगेटिव चार्ज के कारण इस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? देखिए r प्लस L डिस्टेंस पे है, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन r प्लस L हो जाएगा, है ना। अब यहाँ देखिए सिंस क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होता है। सिंस क्या होगा? सिंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is a scalar quantity, therefore total electric potential at point P क्या होगा? V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 हो जाएगा। दोनों वैल्यूज को ऐड कर दिया जाए, उसके बाद सिंप्लीफाई कर दिया जाए तो हमें फाइनल रिजल्ट के रूप में जो फार्मूला है वो फाइंड आउट हो जाएगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पे V1 और V2 की वैल्यू रखा जाए, V1 और V2 की वैल्यू यहाँ रखा जाए, है ना स्टूडेंट। तो रखते हैं, देखा जाए। देखिए ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r माइनस यहाँ इंटू Q अपॉन r माइनस L और ये प्लस, ये नेगेटिव चार्ज के कारण है। यहाँ पे देखिए 1 अपॉन प्लस, देखिए यहाँ लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन r प्लस L। अब ये नेगेटिव साइन यहाँ आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्या मिलेगा? 1/4 पाई, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r माइनस L, माइनस हो जाएगा, ये साइन सामने आ गया। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r प्लस L। दिख रहा स्टूडेंट? देख लेते हैं, दिख रहा है? ओके, दिख रहा। अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q कॉमन हो जाएगा, यानी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर ले लिए, 1/r माइनस L माइनस 1/r प्लस L। अब देखिए सिंप्लीफाई के इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इधर और इसका इधर, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ इधर ही आएगा तो r प्लस L, और इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस r माइनस L। अब भाई क्या हो जाएगा? r माइनस L r प्लस L, ये हो गया। ब्रैकेट ओपन किया जाए, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर ब्रैकेट ओपन करते हैं r प्लस L माइनस, ये अंदर के साइन चेंज हो गए, माइनस r प्लस L हो जाएगा। अब आए नीचे क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में माइनस बी, दूसरा में प्लस बी का फार्मूला लगाइए, r स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, क्या हो जाएगा? माइनस r प्लस r कैंसिल, क्या हो गया? यहाँ से देखिए Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
आई इन टू यल और यल जुटेगा तो क्या होगा 2l बाई आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर। ये हो गया स्टूडेंट, यहाँ तक देखिए ये सिंप्लीफाई कर दिया। अब इधर का थोड़ा इरेज करते हैं। इधर का थोड़ा इरेज करने के बाद देखा जाए, थोड़ा सा स्टेप और बचे हैं। देखिए अब यहाँ से Q को इसके साथ लेते हैं हम, Q को साथ में लिया जाए तो V इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए Q यहाँ आया 2QL लिख सकते हैं, नीचे है ये हो जाएगा 2QL अपॉन आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर। ये हो गया। अब V इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू क्या होती है P होता है आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर। कैसे लिखा आपने, यहाँ लिख दिए सिंस P इज इक्वल टू 2QL होता है डाइपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, P इज इक्वल टू 2QL होता है। अब क्या होगा इफ R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L, देन क्या हो जाएगा यल स्क्वायर विल बी नेग्लेजिबल in comparison to R square. Therefore on leaving L square we get, क्या होगा L स्क्वायर को छोड़ दीजिए, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर। ओके, दिस इज द फाइनल रिजल्ट, है ना स्टूडेंट। तो किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू है ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल किसी भी पॉइंट पे, उसके लिए जो फाइनल रिजल्ट है ये हमने ऑब्टेन किया। तो स्टूडेंट ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, है ना। तो ये टॉपिक कंप्लीट होता है, बाकी नेक्स्ट टर्न पे हम अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स।